Good morning, dear students. Let's start today's class. And today's topic is Robinson Crusoe discovers a footprint. ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, रिवीजन. देन आफ्टर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर वर्कबुक में दिए हैं उसे रिवाइज करेंगे. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर दी क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन है Why was Robinson Crusoe surprised? Why was Robinson Crusoe surprised? The Robinson Crusoe was surprised to see the footprint of a man. Robinson Crusoe surprised क्यों थे? Robinson Crusoe ने क्या देखा था? See the footprint of a man. Then could Robinson Crusoe find more फुटप्रिंट्स? क्या रॉबिन्सन क्रूशो ने और फुटप्रिंट्स पाया? तो नो. देन व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूशो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज अ फुटप्रिंट? रॉबिन्सन क्रूशो ने कैसे जाना कि जो फुटप्रिंट था वह जो प्रिंट था, निशान था, वो फुट का ही था. So the footprint that Robinson found it similar to human foot. That footprint have toe and heels. So this made Robinson Crusoe think. Because वो जो है सेम कैसा था, जो ह्यूमन का फुट होता है उसके प्रिंट जैसा था. लाइक उसमें टो था, हिल्स था, एंड जो उसका एवरी पार्ट है वो किससे मैच कर रहा था? फुट से मैच कर रहा था. Then how did Robinson Crusoe feel after seeing the footprint? फुटप्रिंट देखने के बाद रॉबिन्सन क्रूशो कैसा फील कर रहा था? तो रॉबिन्सन क्रूशो फेल्ट वेरी स्कैर्ड आफ्टर सीइंग द फुटप्रिंट. रॉबिन्सन क्रूशो बहुत स्कैर्ड मीन्स डरा हुआ फील कर रहे थे फुटप्रिंट देखने के बाद. ओके, फुटप्रिंट देखने के बाद बहुत डरा हुआ महसूस कर रहे थे. Then what was Robinson Crusoe's condition when he was returning home? जब रॉबिन्सन क्रूशो होम रिटर्न हो रहे थे तब उसकी कंडीशन क्या थी? तो when Robinson Crusoe was returning home, he was very frightened. Looking back after very 2-3 steps, mistaking every bush or tree to be a man. मतलब जब रॉबिन्सन क्रूशो होम रिटर्न हो रहे थे, ही वॉज वेरी फ्राइटेंड, वो बहुत डरे हुए थे. एंड लुकिंग बैक आफ्टर एवरी 2-3 स्टेप, और हर 2-3 स्टेप्स चलने के बाद वह पीछे मुड़कर देख रहे थे कि कहीं गलती से जो बुश एंड ट्री है वो तो मैन नहीं है. Then why was Robinson Crusoe afraid when he looked at the bushes and tree? Robinson was afraid because that every bushes and trees are man. What happened when Robinson Crusoe reached his cave? जब Robinson Crusoe अपनी cave पहुंचा तो क्या हुआ? When Robinson Crusoe was reached his cave, he did not sleep that night. He thought about what he had seen. The more afraid he became. जब रॉबिन्सन क्रूशो अपनी केव्स में पहुंचे तो वह उस रात सोए नहीं. एंड ही थॉट, और वो सोचते रहे कि उन्होंने क्या देखा, और फिर जो है वो और ज़्यादा डरने लगे. Why could Robinson Crusoe not sleep that night? रॉबिन्सन क्रूशो उस रात क्यों नहीं सो पाए? Robinson could not sleep that night because he thought savages had come from the mainland. रॉबिन्सन क्रूशो उस रात सो नहीं पाए बिकॉज वो सोचने लगे कि जो सवेजेस है मीन्स जो वाइल्ड पीपल्स है वो अपनी mainland पर रिटर्न आ गए हैं. Then what did Robinson Crusoe think about the footprint? Robinson Crusoe footprint के बारे में क्या सोच रहे थे? Robinson Crusoe thought the footprint was of the savages.
सॉवेजेस का फुटप्रिंट है, ऐसे सोच रहे थे। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन क्रूसो, what would have happened if the savages had seen his boat? According to the Robinson Crusoe, if the savages had seen his boat, he would soon return with others to kill and eat him. Means जो रॉबिन्सन क्रूसो के अनुसार जब सॉवेजेस ने उनकी बोट देखी होगी तो वो सोचते हैं कि जो सॉवेजेस है वो अपने अदर जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ आएंगे और उन्हें किल करके खा जाएंगे। Then why did Robinson Crusoe pray when he saw the footprint? Robinson thought that footprint was of savages people and he will kill him, so he started praying for his life. वो अपनी लाइफ के लिए प्रे करने लगे। What happened when Robinson Crusoe prayed? जब रॉबिन्सन क्रूसो ने प्रे किया तो क्या हुआ? When Robinson Crusoe prayed, he was much comforted and began going out to investigate. And 13 number, what happened when Robinson Crusoe went out for 2 or 3 days? When Robinson Crusoe went out for 2 or 3 days, he became bolder. वो थोड़े क्या हो गए? After 2-3 days के बाद बोल्डर हो गए, मतलब थोड़े साहसिक हो गए, उनमें थोड़ी हिम्मत आ गई। And the last 14th number question, what did Robinson Crusoe decide to do when he became bolder? जब वो थोड़े बोल्डर हो गए, उनमें थोड़ी हिम्मत आ गई, तब उन्होंने क्या डिसाइड किया? तो Robinson Crusoe decided to go down to the shore again and examine the footprint once again. उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक बार फिर से किनारे पर जाएंगे और फुटप्रिंट को एग्जामिन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, what did Robinson Crusoe realized when he came closer to the footprint and why? जब रॉबिन्सन क्रूसो फुटप्रिंट के पास आए तो उन्होंने क्या रियलाइज किया एंड व्हाई, क्यों किया? आंसर होगा इसका, व्हेन रॉबिन्सन क्रूसो केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट ही रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी हिज फुटप्रिंट बिकॉज he had not come to this part of beach since a long time. जब रॉबिन्सन क्रूसो उस फुटप्रिंट के पास आए तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि यह जो फुटप्रिंट है ये उनका नहीं है, बिकॉज यह उनके प्रिंट से कैसा, बिकॉज वो लॉन्ग टाइम से बीच के इस पार्ट पर नहीं आए थे। देन वाई डिड रॉबिन्सन क्रूसो's फियर रिटर्न? रॉबिन्सन क्रूसो का फियर मतलब डर वापस कब आया? रॉबिन्सन क्रूसो's फियर रिटर्न, he went home again believing that there was someone there, the island was inhabited. तब जब उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, एग्जामिन कर लिया कि यह उनका फुटप्रिंट नहीं है, तब फिर से उनका जो डर है एक बार रिटर्न आ गया और वो डर गए कि द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड, यह जो आइलैंड है बसा हुआ है, मतलब यहाँ पर और भी पीपल्स रहते हैं। देन है राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी। रॉबिन्सन क्रूसो वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन। Robinson Crusoe ran back to his home as fast as he could because he was afraid. वो बहुत डरे हुए थे। Robinson Crusoe was so frightened that he started mistaking every bush and tree to be a man. Robinson Crusoe looked behind him after every 2 or 3 steps. This shows that he was very frightened. यह शो करता है कि वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। Robinson Crusoe lived in a cave. Robinson Crusoe cave में रहते थे। Robinson Crusoe called his cave is, Robinson Crusoe अपनी cave को क्या बोलते थे? Castle means महल. And Robinson Crusoe could not sleep because
He thought savages had come from the mainland. Then 8 number, Robinson Crusoe thought that if the savages had seen his boat, he would return with others to kill and eat him. Robinson Crusoe prayed for protection. What comforted Robinson Crusoe? Prayers. रॉबिन्सन क्रूसो को क्या कंफर्ट फील हुआ किसमें? प्रेयर में, जब वो अपने प्रोटेक्शन के लिए प्रे करने लगे. Then when Robinson Crusoe started going out for 2 or 3 days, he became bolder. Robinson Crusoe decided to measure the footprint with his own footmark. Why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprint? He had not come to this part of the beach since a long time. And last number, when Robinson Crusoe placed his foot alongside the footprint, it seems larger than his own. And the next, Robinson Crusoe thought that the island was inhabited. And where was Robinson Crusoe? तो इसमें आएगा शी नंबर, alone on an island. रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ थे? आइलैंड पर अकेले थे. Then after, write the meanings of the words. ये आप रीड कर लेना. Then write 2 rhyming words. Head का bread spread. Rose pose goes. Dew few shew. Stay pray lay. Hill pill fill. Okay. Then write 5 words that begin with sh sound. sh sound से start होने वाले word like a short, short, shop, show, shout. Okay. Then 5 words that end with sh sound. Brush, crush, flush, blush, plush, and rush. Then rearrange the jumbled words to make meaningful sentences. ये जो है जम्बल्ड वर्ड है, इनसे हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. ये बिल्कुल भी कोई सीक्वेंस नहीं है इनका. शाह, रॉबिन्सन, द ऑफ क्रूसो, फुटप्रिंट मैन, है ना. तो इसे हमें रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. तो इसका होगा रॉबिन्सन क्रूसो शाह द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन. इसे रीड करना है आपको. देन फिल इन द ब्लैंक्स विथ हु, हुज, हुम, विच और दैट. ये भी आप रीड कर लेंगे. देन नेक्स्ट देखेंगे हम fill in the blanks with and, but और because और show. Okay. in words का use. will you have tea और coffee? आप क्या लेंगे? टी और कॉफ़ी. तो ये जो joining word है, और क्या है? joining word है जिसकी हेल्प से हम किन्हीं भी 2 words को या फिर किन्हीं भी 2 sentences को क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं. ओके. तो ये and, but, and, because, so, and, but, और, because, and, so, ये ज्वाइनिंग वर्ड्स है. तो आप सभी को ये ज्वाइनिंग वर्ड्स एग्जाम में आने वाले हैं, जिनकी हेल्प से आपको क्या करना है? वर्ड्स को सेंटेंसेस को ज्वाइन करने में इनका यूज़ करना है. ओके. Then Lata was sad because she did not get good marks. At first आप सेंटेंस को केयरफुली रीड करेंगे. Then after जो suitable joining word लगेगा उसकी हेल्प से आप उस सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे. Like लता was sad. लता दुखी थी. अब ये ब्लैंक को कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं. She did not get good marks क्योंकि उसके अच्छे मार्क्स नहीं थे, या अच्छे मार्क्स नहीं लिए थे, है ना. तो लता कब सैड होगी? अब इसमें ज्वाइनिंग वर्ड है एंड मीन्स होता है और, बट मीन्स परंतु, और मीन्स या, बिकॉज मीन्स क्योंकि,
शो मीन्स स्लीप। तो जो लता है वो सैड थी, क्यों थी? शी वॉज नॉट गेट गुड मार्क्स। तो इसमें क्या आएगा? बिकॉज लता वॉज सैड बिकॉज शी डिड नॉट गेट गुड मार्क्स। लता दुखी थी क्योंकि उसने अच्छे मार्क्स नहीं पाए थे। देन है ही इज़ अ रिच मैन, वह जो है अमीर आदमी है। ही इज़ नॉट हैप्पी, वह हैप्पी नहीं है। तो और हैप्पी नहीं है आएगा, एंड हैप्पी नहीं है या और हैप्पी नहीं है, बट इसमें क्या आएगा? ही इज़ अ रिच मैन बट ही इज़ नॉट हैप्पी, वह अमीर है बट परंतु ही इज़ नॉट हैप्पी, बट वह खुश नहीं है। आई विल गो होम डू माई होमवर्क, मैं होम जाऊँगा एंड डू माई होमवर्क, और अपना होमवर्क करूँगा। तरला इज टायर्ड, तरला इज टायर्ड सो शी विल नॉट प्ले, तरला टायर्ड है, थकी हुई है, इसलिए वह नहीं खेलेगी। केतन विल वॉच टीवी और रीड अ बुक, इसमें से किसी भी टू में से वन को चूज करना है, तो इसके लिए क्या आएगा? ऑलवेज और आता है। केतन विल वॉच टीवी और रीड अ बुक, केतन टीवी देखेगा या बुक रीड करेगा। जब टू में से किसी वन को चूज करने वाला ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें ऑलवेज और आएगा। ओके, या और मीन्स क्या होता है? या। द टीचर इज बिजी सो वी विल हैव अ फ्री पीरियड, जो टीचर है वो क्या है? बिजी है, इसलिए हमारा पीरियड फ्री है। मिस्टर वर्मा हैज़ अ सन एंड अ डॉटर, मिस्टर शर्मा की एक बेटा है और एक बेटी है। आई रन फास्ट बट आई मिस द बस, मैं तेज दौड़ा बट आई मिस द बस, बट मैंने जो है बस मिस कर दी। द टीचर इज एंग्री बिकॉज वी वर टॉकिंग इन द क्लास, टीचर क्या है? एंग्री है, गुस्सा है, बिकॉज क्योंकि वी वर टॉकिंग इन द क्लास, क्योंकि हम क्लास में बात कर रहे थे। देन आफ्टर, ऐसे ही ये जॉइनिंग सेंटेंसेस दिए हैं जिनमें हमें क्या करने हैं? एंड, बट और बिकॉज का यूज करके सेंटेंस बनाने हैं। देन राइट 10 सेंटेंसेस ऑन अ फनी इंसिडेंट, फनी इंसिडेंट के ऊपर 10 सेंटेंसेस राइट करने हैं। ऐसे ही आपको एग्जाम में वन टॉपिक आएगा जिस पर आपको क्या राइट करने होंगे? 10 सेंटेंसेस राइट करने होंगे। लाइक फनी इंसिडेंट आ सकता है, अपने ग्रैंडफादर के ऊपर राइट करने आ सकता है, या फिर आपके फेवरेट जो है फ्रेंड के ऊपर राइट करने आ सकता है, बेस्ट फ्रेंड के ऊपर। एंड जो लेटर करवाया है आपको टेक्स्ट बुक में, लेटर राइट करवाया है मैंने आपको, वो लेटर आ सकता है ना? ये भी आपको मेमोराइज करना है। देन डिस्क्राइब द पिक्चर इन 10 सेंटेंसेस, इस पिक्चर को 10 सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करना है। तो ये मैंने करवा दिया है, आप इसे केयरफुली क्या कर लेंगे? रीड कर लेंगे। देन आफ्टर दैट, इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4, और उसमें फर्स्ट पोएम है क्राइंग। आप उस पोएम को केयरफुली रीड कर लेना और उसके जो ऑल डिफ़िकल्ट वर्ड्स है एंड उस पोएम को केयरफुली अंडरस्टूड कर लेना। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? मैंने टेक्स्ट बुक में जो इस पोएम को एक्सप्लेन करवाया था उसका वीडियो आपको जो है उसका लेक्चर कहाँ मिल जाएगा? स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक वाले जो वीडियोज़ हमने अपलोड किए हैं उसमें से आप केयरफुली उस पोएम को सुन लेना। देन आफ्टर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको वो एक्सप्लेन करवा दूँगी। ओके, देन इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा दे रही हूँ। आपके इससे रिलेटेड जो भी ये पोएम है आपको उसे केयरफुली रीड कर लेना है। ओके, आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट कुड यू क्राई अ लिटिल और शुड यू क्राई अ लॉट? अकॉर्डिंग टू पोएम, पोएट के अकॉर्डिंग आपको
थोड़ा रोना चाहिए या बहुत ज़्यादा रोना चाहिए? तो ये जो हमने पोएम रीड किया था क्राइंग के अकॉर्डिंग, तो जो पोएट कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट वी शुड क्राई अ लॉट, हमें बहुत ज़्यादा रोना चाहिए। हमें इतना रोना चाहिए जब तक कि हमारा जो पीलो है वो पूरी तरह से भीग न जाए, गीला ना हो जाए, राइट। अकॉर्डिंग टू द पोएट हाउ मच शुड यू क्राई, अकॉर्डिंग टू द पोएट आपको कितना रोना चाहिए? सेम, अकॉर्डिंग टू द पोएट वी शुड क्राई अ लॉट, पोएट के अकॉर्डिंग हमें बहुत सारा रोना चाहिए। द नेक्स्ट, व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट, बहुत ज़्यादा रोने के बाद आपको क्या करना चाहिए? तो आफ्टर क्राइंग अ लॉट आई टेक बाथ एंड देन हैव अ ग्लास ऑफ शेक, बहुत ज़्यादा रोने के बाद जो है बात करना चाहिए, देन आफ्टर 1 ग्लास शेक पीना चाहिए। क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज नो यूज, यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सोक्ड, व्हाट इज द मूड इन दिस लाइन, हैप्पी, सैड, एंग्री, जेलस या अपसेट? Crying only a little bit is no use, you must cry until your pillow is soaked. तो इस लाइन में जो मूड है वो कैसा है? थोड़ा सैड है। Then in the last few lines the mood of the poet has changed. What is it now? लास्ट की कुछ लाइन्स में जो है पोएट का मूड चेंज हो जाता है। वो कैसा होता है? वेरी हैप्पी हो जाता है, एंग्री होता है, चीयरफुल होता है, सैड होता है या जेलस होता है। तो क्या होता है? वेरी हैप्पी। लास्ट की कुछ लाइंस में जो पोएट है उनका जो मूड है बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। देन है राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन द बॉक्स। क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज नो यूज, थोड़ा रोने का कोई मतलब नहीं है। यू मस्ट क्राई अंटिल, आपको कब तक रोना चाहिए? अंटिल योर पिलो इज सोक्ड, जब तक कि आपका पिलो पूरी तरह से गीला ना हो जाए। देन थर्ड, आफ्टर यू क्राई यू कैन जम्प इन द शावर, रोने के बाद आप कहाँ जंप कर सकते हैं? इन द शावर, शावर लेने के लिए कहते हैं पोएट। देन आफ्टर यू क्राई यू कैन ओपन द विंडो एंड लाफ लाउडली, रोने के बाद जो है आपको विंडो ओपन कर सकते हैं और जो है जोर जोर से लाउडली लाफ कर सकते हैं, हंस सकते हैं। देन in the beginning of the poem the poet is sad, at the end of the poem the poet is happy. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये है आपका क्राइंग जो पोएम है, इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। मैंने आपको ये पोएम केयरफुली रीड करने के लिए बोल दिया है। देन आफ्टर इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है माय एल्डर ब्रदर। आपको इस चैप्टर को केयरफुली रीड करना है एंड इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, बिकॉज अब हमारे पास क्लास का रिवीजन का टाइम नहीं है, बिकॉज आपके मंडे से एग्ज़ाम स्टार्ट है, राइट। तो आप क्या करेंगे? आपको खुद ही रिवीजन करना होगा, तो इसके लिए अगर नेक्स्ट क्लास होती है तो मैं इसका कंटिन्यू करूँगी इसे, बट आपके लिए होमवर्क है कि इसके बाद के जो चैप्टर्स है आपको उन्हें केयरफुली रीड करना है और इनके जो क्वेश्चन आंसर है उन्हें अंडरस्टूड करके मेमोराइज करना है। ओके, and that is all for today and all the best for your exam. Thank you.